system that is directly proportional to lowering of potential energy of system. एक सिस्टम जितनी लोअर एनर्जी स्टेट में एग्जिस्ट करेगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी. अब सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज कैसे होती है? The decrease in energy takes place due to electrostatic attraction between cation and anion. It means now we can see that lowering of energy, lowering of potential energy is directly proportional to electrostatic attraction. Electrostatic attraction between cation and anion. चलिए इस चीज को हम लोग और अच्छे से समझते हैं. Cation is positively charged, anion is negatively charged. Ionic bond is non-directional in nature. It means cation is surrounded by anion and each anion is surrounded by cation. क्लोज पैकिंग का मोड ऐसा होता है, कैटायन के सराउंडिंग में ढेर सारे एनायन प्रेजेंट होते हैं एंड एनायन के सराउंडिंग में देखा जाए तो कैटायन प्रेजेंट होते हैं. The number of oppositely charged ion surrounding this cation or anion is known as coordination number. एक कैटायन के चारों ओर जितने ज़्यादा एनायन होंगे अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड उतना ही ज़्यादा होगा और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही डिक्रीज होती जाएगी. लोअर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम हायर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द सॉलिड. तो आयनिक कंपाउंड बनने के लिए क्लोज पैकिंग का मोड ऐसा होना चाहिए कि उस समय कैटायन के सराउंडिंग में मैक्सिमम एनायन प्रेजेंट हो एंड एनायन के सराउंडिंग में मैक्सिमम कैटायन प्रेजेंट हो. This situation is called ideal situation. And ideal situation के समय कैटायन और एनायन का साइज कितना होना चाहिए, उनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए, इसको डिसाइड किया जाता है रेडियस रेशियो रूल से. रेडियस रेशियो रूल. What is radius ratio rule? Basically, radius ratio is the ratio of radius of cation and radius of anion. एक्चुअली कैटायन और एनायन का साइज डिसाइड करेगा कि रेडियस रेशियो की वैल्यू क्या आती है एंड रेडियस रेशियो की हेल्प से हम लोग ये चेक करते हैं कि प्रोबेबल अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए, व्हाट शुड बी द कोऑर्डिनेशन नंबर, कंपाउंड किस तरह से पैक हो जाए कि सिस्टम की स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाए. चलिए देखिए व्हाट शुड बी द रेडियस रेशियो फॉर आयनिक सॉलिड. आयनिक सॉलिड में रेडियस रेशियो की प्रोबेबिलिटी क्या होती है उससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, उसकी ज्योमेट्री. तो एक टेबल बनाते हैं. फर्स्ट कॉलम इज रेडियस रेशियो, सेकेंड कॉलम में लिखिए कोऑर्डिनेशन नंबर, थर्ड कॉलम ज्योमेट्री, फोर्थ कॉलम एग्जाम्पल. क्या क्या पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है रेडियस रेशियो के लिए? इफ रेडियस रेशियो ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड लाइज बिटवीन 0.115 to 0.225, इफ रेडियस रेशियो इस रेंज में है देन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयनिक सॉलिड विल बी 3 एंड ज्योमेट्री विल बी ट्रायंगुलर प्लेनर. Triangular planar. Such type of ionic compound or solid is B2O3. Second possibility, if radius ratio of ionic compound lies between 0.225 to 0.414, then coordination number will be 4. And arrangement of the ion will be tetrahedral. Tetrahedral, it means each cation is surrounded by 4 anion.
and each anion is also surrounded by 4 cation. Arrangement will be tetrahedral arrangement. Such type of ionic solid is zinc sulfide. Zinc sulfide is also known as sphalerite. Next possibility, if radius ratio lies between 0.414 to 0.732, then coordination number of each ion will be 6. And coordination number 6, it means arrangement will be octahedral arrangement. It means each cation is surrounded by 6 oppositely charged anion, and anion is also surrounded by 6 oppositely charged cation. Example of such type of crystalline solid is sodium chloride, also known as rock salt. If radius ratio lies between 0.73 to 1, then coordination number of each ion will be 8 and geometry of such type of solid will be BCC type arrangement. Example of such type of crystalline solid is cesium chloride. If radius ratio is more than 1, it means cation and anion का size almost बराबर हो जाए, then arrangement will be HCP or CCP arrangement. But this concept is hypothetical. कभी कोई ऐसा आयनिक कंपाउंड नहीं होता है जिसके कैटायन एंड एनायन के साइज बिल्कुल बराबर हो, बट हाइपोथेटिकली इफ देयर साइज इज इक्वल तो वो मेटालिक क्रिस्टल की तरह, एलिमेंट की तरह क्लोज पैकिंग पैटर्न को फॉलो करेंगे. सीसीपी मोड में क्लोज पैकिंग शो कर सकते हैं, एचसीपी मोड में क्लोज पैकिंग पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं. सो बेसिकली जो आयनिक कंपाउंड है उनमें रेडियस रेशियो की पॉसिबिलिटी क्या होगी उसको हमने इस टेबल में अरेंज किया हुआ है. अब देखिए रेडियस रेशियो में एक लोअर लिमिट की वैल्यू रखी है, एक हायर लिमिट की वैल्यू रखी है. इट मींस कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होने के लिए, ट्रायंगुलर प्लेनर अरेंजमेंट होने के लिए रेडियस रेशियो की वैल्यू 0.115 से लेकर के 0.225 की रेंज में है. 0.115 है तब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 3 रहेगा. इफ इट इज 0.125 तब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 3 रहेगा. इफ रेडियस रेशियो इज 0.215, इट मींस अप टू दिस लिमिट कोऑर्डिनेशन नंबर विल रिमेन सेम. लेकिन जैसे ही रेडियस रेशियो की वैल्यू 0.225 से चेंज हो जाती है, बढ़ जाती है, इमीडिएटली उसका कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हो जाता है. सो हाउ कोऑर्डिनेशन नंबर डिपेंड्स अपॉन द size of cation and anion, and what should be the ideal radius ratio. आइडियल क्रिस्टल के फॉर्मेशन के लिए कैटायन एंड एनायन का साइज परफेक्टली कितना होना चाहिए उसको बोला जाता है लिमिटिंग रेडियस रेशियो. अब लिमिटिंग रेडियस रेशियो क्या होता है, एक्सपेंडेड लैटिस क्या होता है, इसको हम लोग यहां पर समझने की कोशिश करते हैं. Now see what is limiting radius ratio. Limiting radius ratio. Radius ratio. Limiting radius ratio, it means ideal condition. What should be the ideal condition? इसको यहाँ समझने की कोशिश कीजिए. Suppose एक कंपाउंड है जिसमें कैटायन एंड एनायन का अरेंजमेंट ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट है. ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट देखिए हम बना रहे हैं एनायन के लिए. दिस इज एनायन नेगेटिवली चार्ज्ड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड. अब आप इमेजिन करके चलिए, एक एनायन, दूसरा एनायन, तीसरा, चौथा. एक एनायन इस स्फीयर के ऊपर रखा जाएगा और एक एनायन स्फीयर के नीचे चला जाएगा. बीच की जो खाली जगह बच रही है इस स्पेस को हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड. कैटायन इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर फिट हो गया, तो यहां पर लिखते हैं हम ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट. ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट. ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट परफेक्ट अरेंजमेंट हो
उस समय कैटायन एंड एनायन की सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए दैट ईच एनायन इज इन कॉन्टैक्ट ऑफ ईच अदर, एट द सेम टाइम एनायन शुड बी इन द कॉन्टैक्ट ऑफ कैटायन। अब इस सिचुएशन में देखिए सारे एनायन एक दूसरे को टच कर रहे हैं एंड कैटायन भी सारे एनायन को टच कर रहा है। This situation is called ideal situation, and इस ideal situation में radius ratio, which is radius of cation upon radius of anion, this radius ratio should be 0.414. Exactly 0.414 होगा तो ये ideal situation होगी। बट इट इज नॉट नेसेसरी कि हमेशा कैटायन का साइज परफेक्ट साइज हो। इट मे बी पॉसिबल कैटायन इज स्मॉलर देन दिस कैटायन और इट मे बी लार्जर देन दिस कैटायन। सो व्हाट हैपेंस इफ कैटायन इज स्मॉलर देन आइडियल कैटायन? एनायन हमने एज इट इज लिया, ये देखिए दिस इज एनायन, इसी एनायन को हम ड्रॉ कर रहे हैं, दिस इज एनायन। Suppose cation is smaller than this cation. If cation is smaller than this cation, तो वो इस void के अंदर enter कर जाएगा। लेकिन अब सिचुएशन कैसी है कि ये कैटायन एनायन को टच नहीं कर पा रहा है। Anions are in the contact of each other, but cation एनायन को टच नहीं कर पा रहा। और जब कैटायन एनायन को टच नहीं करेगा तो उसकी लैटिस एनर्जी डिक्रीज होने लगेगी, एंड इफ लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस तो चांसेस है कि स्पेस लैटिस ब्रेक कर जाएगा। टू मेंटेन द स्पेस लैटिस, इससे पहले कि ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाए, साइज के अकॉर्डिंग क्लोज पैकिंग का मोड चेंज हो जाता है। इट मीन्स इफ कैटायन इज स्मॉलर देन आइडियल कैटायन तो इमीडिएटली एनायन के पैकिंग पैटर्न का मोड चेंज हो जाएगा। जब कैटायन का साइज छोटा है तो अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा और ऑक्टाहेड्रल की जगह पर ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेगा। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री विल बी ऑब्टेन। क्लियर? सपोज कैटायन इज लार्जर देन दिस आइडियल कैटायन। अब मान लीजिए इस आइडियल इस परफेक्ट कैटायन से बड़ा कैटायन है, तो वो कैटायन इस वॉइड के अंदर तो एंटर कर जाएगा एंड एंटर करने के बाद वो एनायन को बाहर की तरफ पुश करेगा। 4 एनायंस हैं। इफ लार्जर कैटायन इज प्लेस्ड तो वो एनायन को पुश करेगा अपनी जगह बनाने के लिए। एनायन एनायन का कांटेक्ट खत्म होने लगेगा, एनायन एक दूसरे से दूर चले गए, लेकिन कैटायन इन सब के कांटेक्ट में है। अगेन आप देख रहे हैं यहाँ गैपिंग क्रिएट हो गई। गैप क्रिएट होने का मतलब क्या होता है? क्लोज पैकिंग का मोड चेंज होना शुरू हो जाएगा। अप टू सर्टेन लिमिट अरेंजमेंट ऐसा ही रहेगा, ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट ही रहेगा, लेकिन एनायन का कांटेक्ट खत्म हो गया है, इसलिए इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं एक्सपैंडेड लैटिस। दिस इज आइडियल लैटिस, दिस इज एक्सपैंडेड ऑक्टाहेड्रल लैटिस। अप टू सर्टेन लिमिट ज्योमेट्री विल बी ऑक्टाहेड्रल। लेकिन जब कैटायन का साइज बहुत बड़ा हो गया तब कैटायन इस वॉइड के अंदर नहीं एंटर कर पाएगा और उस समय उसकी ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी। स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के लिए अब इस तरह का अरेंजमेंट हो जाएगा। अगेन सिचुएशन ऐसे बन गई कि ये कैटायन एक दूसरे को टच करना शुरू कर दे, एनायंस एक दूसरे को टच करने लगे, एंड सिंस कैटायन का साइज बड़ा है वो इस वॉइड के अंदर एंटर नहीं कर सकता, तो ये कैटायन क्या करेगा? इनके ऊपर आकर के अपनी पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा। इट मीन्स ऑक्टाहेड्रल से चेंज हो करके अरेंजमेंट किस में कन्वर्ट हो जाता है? बॉडी सेंटर्ड लैटिस में कन्वर्ट हो जाएगा। So see what is the effect of size in the close packing of ionic compound. एक बार फिर से देखिए what is limiting radius ratio and size का effect क्या होता है।
हमने एक आइडियल ऑक्टाहेड्रल सिस्टम लिया। ऑक्टाहेड्रल का मतलब कैटायन इज सराउंडेड बाय 6 एनायन। अब आइडियल सिचुएशन का मतलब होता है द रेडियस रेशियो इज एग्जैक्टली 0.414। कैटायन यहाँ एंटर किया, कैटायन चारों एनायन को अपनी प्लेन में एक ऊपर और एक नीचे, इट मीन्स 6 एनायन के कॉन्टैक्ट में है and these anions are also in contact with each other. This situation is the most stable situation because attractive forces का magnitude इस situation में सबसे ज़्यादा होता है। अब हमने ये अज्यूम किया कि कैटायन का साइज परफेक्ट साइज से छोटा है। एक छोटा कैटायन इफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है तो उसकी सिचुएशन ऐसी दिखाई देगी। एनायन एक दूसरे के साथ कांटेक्ट मेंटेन कर रहा है बट कैटायन इनको टच नहीं कर पा रहा। इफ कैटायन टच नहीं कर पाएगा तो आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होने लगेगी एंड इससे पहले कि लैटिस ब्रेक हो जाए सिस्टम अपना कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज कर लेगा। सो इफ कैटायन इज स्मॉलर देन दिस कैटायन सो अरेंजमेंट ऑक्टाहेड्रल से चेंज होकर के टेट्राहेड्रल में कन्वर्ट हो जाता है। इफ कैटायन इज लार्जर देन दिस कैटायन तो वो इस वॉइड के अंदर एंटर करेगा, एनायन को पुश करेगा और जब एनायन को पुश करेगा तो एनायन का कांटेक्ट एक दूसरे से खत्म हो गया, अगेन सिस्टम की स्टेबिलिटी डिक्रीज होने लगेगी। अप टू सर्टेन लिमिट द ज्योमेट्री विल बी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, लेकिन उसके बाद भी यदि एनायन का साइज बड़ा है तो लैटिस ब्रेक करने के बजाय वो अपना कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज कर लेगा, बॉडी सेंटर्ड लैटिस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो व्हाट शुड बी द ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयनिक कंपाउंड, इट परफेक्टली डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। अब देखिए हम लोग रेडियस रेशियो को कैसे यूज करते हैं। हाउ कैन वी प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कंपाउंड और ज्योमेट्री। सपोज क्वेश्चन आपसे पूछा जाए द रेडियाई ऑफ कैटायन इज 60 पिकोमीटर एंड दैट ऑफ एनायन is 120 पिकोमीटर। कैटायन की रेडियाई दी हुई है, एनायन की रेडियाई दी गई है। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर? व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सॉलिड एंड इट्स ज्योमेट्री? इस आयनिक कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, इस आयनिक कंपाउंड की ज्योमेट्री क्या होगी। कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? हम लोग कैलकुलेट करेंगे रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो इज रेडियस ऑफ कैटायन बाय रेडियस ऑफ एनायन। कैटायन का रेडियस दिया हुआ है 60 पिकोमीटर, यहाँ लिख दिया हमने। एनायन का रेडियस दिया हुआ है 120 पिकोमीटर, तो रेडियस रेशियो की वैल्यू क्या आ गई? 0.5। अब ये जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की इससे हम टेबल में चेक करेंगे कि इस रेडियस रेशियो की बेसिस पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए। अभी हमने टेबल में क्या पढ़ा था? इफ रेडियस रेशियो lies between 0.414 to 0.732 then coordination number will be 6. यह स्टेटमेंट हमने पहले पढ़ा था, टेबल हमने पढ़ा था। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस क्रिस्टलाइन सॉलिड की रेडियस रेशियो की वैल्यू आ रही है 0.5, तो 0.5 का मतलब ये वैल्यू इस रेंज के अंदर आ रही है।
तो हम क्या कह सकते हैं कि इस क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए द कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इट मीन्स ज्योमेट्री ऑफ दिस सॉलिड will be octahedral. Is it clear now? तो एक आयनिक कंपाउंड की ज्योमेट्री एंड उसके कोऑर्डिनेशन नंबर को प्रेडिक्ट करने के लिए हमें रेडियस रेशियो की हेल्प लेनी पड़ती है. Now let us see some more questions related to this concept. Next question is AB solid has zinc sulfide structure. If radii of anion B is 100 picometer, what should be the radii of cation? What should be the radii of cation? अब यहाँ देखिए एक एनायन की रेडियस गिवन है और हमें कैटायन की रेडियस को फाइंड आउट करना है. कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं? क्लू इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है? AB solid has जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर. अब हमने रेडियस रेशियो बारे में एक कॉलम बनाया था, उसमें एग्जाम्पल दिया था जिंक सल्फाइड. तो जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर की स्पेशल फीचर क्या है? जिंक सल्फाइड इज टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ऑफ कैटायन एंड एनायन. जिंक सल्फाइड टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट को शो करता है एंड टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट का मतलब हुआ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच आयन विल बी 4. कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच आयन इज 4. कोऑर्डिनेशन नंबर 4 करने के लिए रेडियस रेशियो की वैल्यू क्या होनी चाहिए? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए रेडियस रेशियो की वैल्यू होती है 0.225 to 0.414. टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट यहाँ भी पॉसिबल है. टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट अप टू दिस लिमिट पॉसिबल होता है. अब हमें यहाँ चेक करना है कि उस कैटायन का रेडियाई क्या होना चाहिए. तो कैटायन के लिए हम 2 लिमिट लेके चलते हैं. इफ इट इज आइडियल कैटायन का परफेक्ट साइज कितना होना चाहिए? परफेक्ट साइज के लिए हम लोग रेडियस रेशियो की लोअर लिमिट की वैल्यू को कंसीडर करेंगे. अब लोअर लिमिट हमने लिया, रेडियस रेशियो इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कैटायन बाय रेडियस ऑफ एनायन. आइडियल क्रिस्टल बनाने के लिए रेडियस रेशियो ऑफ दिस कंपाउंड शुड बी 0.225. रेडियस रेशियो की वैल्यू लिमिटिंग रेडियस रेशियो होनी चाहिए. रेडियस ऑफ कैटायन कैलकुलेट करना है. रेडियस ऑफ एनायन की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 100 पिकोमीटर. इसको हमने सॉल्व कर लिया. सॉल्व करने के बाद रेडियस ऑफ कैटायन कैलकुलेट हो गया. दिस इज 0.225 इंटू 100 पिकोमीटर. और दिस इज 0.225 into 100, that is 22.5 picometer. So if AB solid जिंक सल्फाइड के जैसे स्ट्रक्चर को ऑप्ट करना चाहता है, आइडियल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करना चाहता, तो उस समय इस कैटायन का रेडियस होना चाहिए 22.5 पिकोमीटर. But may be possible that structure is not ideal structure. If it is not ideal structure, it means the structure may be expanded lattice. And expanded lattice कब बनेगा? जब कैटायन का साइज इस आइडियल साइज से बड़ा है.
तो कब तक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की पॉसिबिलिटी रहती है? इफ आइडियल स्ट्रक्चर से बड़ा है तो हम रेडियस रेशियो की अपर लिमिट को कंसिडर करेंगे. द अपर लिमिट इज 0.414. दिस इज रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन. 0.414 रेडियस ऑफ कैटायन. बड़ा कैटायन है तो वो अप टू सर्टेन लिमिट ही बड़ा हो सकता है. कितना बड़ा कैटायन इस तरह की ज्योमेट्री को ऑप्ट कर सकता है, ये हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं. रेडियस ऑफ एनायन इज 100 पिकोमीटर. रेडियस ऑफ कैटायन हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया. दिस इज 0.414 इंटू 100. इट मीन्स 41.4 पिकोमीटर. अब देखिए इस कैलकुलेशन से, इस क्वेश्चन से हमें क्या चीज समझ में आता है कि टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट बनाने के लिए कैटायन का साइज 22.5 पिकोमीटर से लेकर के 41.4 पिकोमीटर की रेंज में हो सकता है. इस तरह के सॉलिड स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के लिए इफ कैटायन का साइज 22.5 पिकोमीटर है तब ये आइडियल क्रिस्टल का फॉर्मेशन करेगा, आइडियल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा. इफ रेडियाई ऑफ कैटायन इज लार्जर देन 22.5 पिकोमीटर बट स्मॉलर देन 41.4 पिकोमीटर तब भी टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट तो रहेगा, लेकिन इस समय ये एक्सपेंडेड लैटिस का फॉर्मेशन करता है. इज इट क्लियर? तो जब हमें किसी एक आयन के साइज के बारे में बता दिया जाए, उसकी ज्योमेट्री के बारे में बता दिया जाए, आइडियल क्रिस्टल फॉर्मेशन के लिए दूसरे आयन का परफेक्ट साइज कितना होना चाहिए, इट कैन बी कैलकुलेटेड इफ वी नो द लिमिटिंग रेडियस रेशियो एंड रेडियस रेशियो ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड.